उनका रेफरेंस में होगा क्योंकि फर्स्ट ईयर के है ना वो उसको डिस्कस ठीक है Perfeito. Yes. सर आपको अनम्यूट कर दिया सर। डीजी सर को अनम्यूट कर दिया रामशंकर जी? नहीं सर, नहीं सर, अनम्यूट हैं सर। डीजी सर अनम्यूट हैं। सारे गेस्ट और चीफ गेस्ट हमारे आ चुके हैं सारे। अच्छा डीजी सर विद योर परमिशन कैन वी स्टार्ट द प्रोग्राम? Please start it. ओके थैंक यू। I'm audible now. यस सर यू आर ऑडिबल। Yes, sir. Good afternoon, all. I, Dr. Swati Singh, welcome all the dignitaries present, our chief guest, and all the participants for 1 week online FTP program on innovative pedagogy for effective teaching and e-learning during COVID era, organized by Institution Innovation Council, an initiative of Ministry of Education, Government of India, and Internal Quality Assurance Cell of IMT College of Management, Greater Noida. The IMT College of Management, Greater Noida was established in 2006, and since its inception, college has always focused on providing constant support and guidance to research scholars and teachers around the country by conducting various FTPs, conferences, and seminars. Now, I would like to start the event by inviting our Deputy Director, Abhin Bakshi Bhatnagar, sir, for the welcome address of our guest. Sir, please. सर अनम्यूट कर लीजिए, म्यूटेड हैं हम। Thank you. Good afternoon to all. It's my privilege to welcome all the participants in the 1 week FDP organized by IIMT College of Management on the topic Innovative Pedagogy for Effective Teaching and E-Learning during the COVID era. It's a matter of great honor for me to welcome our chief guest, Shri Dr. Arun Kumar Bhagat sir, member, Bihar Public Commission. Welcome, sir. I warmly welcome our guest of honor, Professor Dr. N.K. Soni Saab, Director General, IMT Group of Colleges. Welcome, sir, to this program. It's my pleasure to welcome all directors, deputy directors, deans of IMT Group of Colleges and IMT College of Management, Shri Nigam Saab, Dr. Anshu and Dr. Viva. I also welcome all the faculty members and all respected faculty participants from the various institutes of India. I am happy to share that we received around 600 participation registration entries from throughout India from the various states like Arunachal Pradesh, Madhya Pradesh, Jammu Kashmir, Punjab, Karnataka, Rajasthan, West Bengal, and even from abroad also like Bahrain and Dubai. So I welcome all my
outsiders, participants as my preferable guest. Welcome to IMT College of Management. During 1 week FDP, we will cover the various themes regarding teaching learning, especially in the COVID era. During this pandemic, the teaching methodology is greatly changed because right now we are in the cyber era. So in this cyber era, everything is digitization. So these 1 week sessions will give you an innovative teaching learning methodologies and also discuss evaluations procedures, Bloom's taxonomy, new methods, learning management systems, student information systems, and many more, digital teaching and all that. So I hope this event is going to be a learning academic event. Thank you very much. Over to Swati ma'am. Thank you, sir. Now I would like to invite our respected Director General, Sir, Professor Dr. M.K. Soni. Dr. Soni did his PhD in 1988 from NIT Kurukshetra on aspects of microprocessor-based control systems. He has 40 years of teaching, research, and administration experience in which he has guided 50 plus MTech projects and PhD thesis. Prior to joining IMT, Dr. Soni was Pro Vice Chancellor of Manav Rachna International University in Faridabad since 2017. We are glad to have you, sir, with us today. Now, I would like to invite sir on the platform. Sir, please. Thank you very much. Today's chief guest, Professor Arun Kumar Bhagat, Member Bihar Public Service Commission, Bihar. Welcome, sir. In the IMT College of Engineering, IMT College of Management, Dr. Abhin Bakshi Bhatnagar, Deputy Director of the Institute, Dr. Ramashankar, Convener of the program, FTP program, Ms. Lata SPC, and Mr. Pratik Dwivedi, the co-convener of the FDP program. It's really a wonderful, I should say, the IMT College of Management, Greater Noida is organizing a 1 week FDP program, which is to be started on 2nd June 2021 on the very good topic that the innovative pedagogy for effective teaching and e-learning during COVID era. Now this program is very, very important nowadays. Why? Because we have been passing a stage, a era where we cannot go physically anywhere in any institution. And institutions are supposed to be run because we cannot afford to lose the study of our students. So according to the UNESCO report, 1.5 billion students around the world are engaged in the remote learning, online learning in the COVID-19 pandemic. Some students are able to access internet and they are able to do it, and some students are not able to get the internet facility and they are not able to utilize the facility of this online learning. Now the teacher, because this happened immediately, our teachers were not even got the time to learn how to have a better teaching in the online. And without any experience on the online, they have also started teaching online. And they also face a lot of challenges. One of the most important challenges was the internet broadband internet connection, which was sometimes available, sometimes it was not available, and lot of problem was faced by both the students as well as faculty members. The faculty were exploring a pedagogy for the online teaching, and the three things has motivated to go for online pedagogy. When I say the pedagogy means that is the design of the curriculum which is required, and when I say innovative, that means innovative design, that is study of pioneering the way of teaching along with an exploration of how the process of teaching is impacted by those innovations. The three things has motivated to develop a new pedagogy for this,
The first, that is a changes in the society, the students' expectation, and new advances in the technology. They are motivated to explore the new pedagogy for the effective teaching through e-learning. When I say new demands of the knowledge in the society has erosion, and because of that, the continuing development of the new knowledge and impart, which is to be imparted in a limited span of time. Second, applying this knowledge using the skill such as critical thinking, independent learning, the use of relevant information technology, so they were the required so that the skill can be developed. Now, the educating the students with this skill and manage their own learning throughout life so that they can continue to learn after graduation. This is the challenge, and that is because of the outcome-based education model, which is required and which connect the learning with the employability. The second, that is a expectation of the students, that is a new expectation, that the students' demographic have been changing for considerable time. More and more mature students are coming, more students are combining work with the study, more students are looking for flexibility learning options. So these students expect to find jobs where he can apply this learning and earn a reasonable income. So that is also a motivating factor for development of new pedagogy. Then the new technology, because this is a digital, we call it digital India. So new technology has come. The continuing advancing in the digital technology and social media and mobile devices has also led to develop the new pedagogy for the online education. Now, the development of this pedagogy are based on the 7 keys. The 7 keys. The first key is the blended learning. Blended learning is now has come a question when we have under COVID era go, where the integration of the classroom and the online teaching, they are the 2 things which have been combined. That for interaction classroom is required, and for a online they provided the flexibility and access to the reasonable resources and the experts which may be available online depending on their own time available. The second factor which has key is there, that is a collaborative approaches, where students share their experiences, discussion, challenges, and learn from each other. You see, this is also available when we all reside in the hostel. Earlier I still remember when we were engineering, they all are required to remain in the hostel. So we have a automatic collaborative learning here. The same thing has again come back here, collaborative learning. And I find collaborative learning, if you have then the difficult things can be learned in a very shorter span of time. Because we can have a discussion, we can have the experience, contributors' experience of each other, and then we can help each other also. And second is the use of the multimedia. A multimedia use is very much important actually, and open education resources like video lecture, animation, simulators, virtual labs, etc. These are required to be now incorporated so that we can use the benefit of all these latest technology. Next is the anywhere, anytime, any size. It's very important actually. Anywhere, because I told you demographically students are at many places are there. So anywhere, anytime, any size, that thing can be incorporated in this online teaching. Then the new forms of assessment. We can have an assessment in a new ways, how to access the students. Then self-directed and non-formal learning resources like MOOCs, which are non-formal. So that we can utilize these things also, which we have been doing also here. Then 7th is the increased students' control, choice, and independence. So these are the 7 key factors which has led to the innovative pedagogy. I hope in this FD program,
all the new techniques and the key factor for the development of new pedagogy will be taken into consideration. I don't want to take much time here because that will take much time for me here to explain this one. But these things are very much required for a faculty member, that they should know that how the new innovative pedagogy has been developed for the online e-learning. I hope and wish you all the best for the success of this program. Thank you very much. Thank you so much, sir, for your valuable thoughts. Now, we are also honored to have Professor Arun Kumar Bhagat, sir, with us as chief guest and keynote speaker of the day. Professor Bhagat is a well-known personality in the field of Hindi literature and journalism. Sir has done his PhD from Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth Varanasi and has more than 10 years of experience as a newspaper editor. He has also worked on different positions in different popular newspapers. Currently, he is head of the department and Dean of Media Studies Department in Mahatma Gandhi Central University, Motihari, Bihar. He has also written and edited 24 books. For his outstanding contribution, he has been awarded Rashtradhan Gaurav Samman in 2016 and Bhasha Mitra Samman in 2018. Professor Bhagat is also a current member of Bihar Public Service Commission in Patna and also a member of Advisory Committee in Delhi School of Journalism, amongst other academic bodies and committees. Now, I would like to invite Professor Bhagat, sir, to address our participants. Sir, please. धन्यवाद। IIMT कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट ग्रेटर नोएडा के इनोवेटिव काउंसिल के तत्वावधान में आयोजित एक सप्ताह के फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के उद्घाटन सत्र में M.K. सोनी जी, IIT स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के डीन आर अध्यापकगण से जुड़े हुए अधिकारी, यह प्रसन्नता की बात है कि इस आपदा की घड़ी में भी IIMT कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा एक सप्ताह का फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम आयोजित हुआ है। इस एक सप्ताह के कार्यक्रम का जो विषय है वह भी बड़ा महत्वपूर्ण है, समय के अनुकूल है। जिस आपदा की घड़ी में, जिस महामारी के काल से हम सब गुजर रहे हैं, उसी के अनुकूल संस्थान ने विषय भी रखा है। विषय है इनोवेटिव पेडागोजी फॉर इफेक्टिव टीचिंग एंड ई लर्निंग ड्यूरिंग कोविड-19। कोविड-19 के कारण समाज जीवन प्रभावित हुआ है। पूरी दुनिया आज इससे प्रभावित है। भारत में भी बड़े पैमाने पर बदलाव दिख रहे हैं और कोविड का जो प्रभाव है वो सर्वत्र दिखाई देता है। शिक्षा के क्षेत्र में तो कोविड का प्रभाव सर्वाधिक ही दिख रहा है। आज यहाँ जितने लोग जुड़े हुए हैं वह अध्ययन अध्यापन से जुड़े हुए लोग हैं, प्राध्यापक हैं, विभिन्न संस्थान में पढ़ाते हैं। मंच पर जो विराजमान व्यक्तित्व हैं वह भी
अध्ययन अध्यापन से जुड़े हुए लोग हैं और इस कोविड के काल में उनकी महत्ता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। आप में से अधिकतर लोग जिस प्रोफेशन से जुड़े हैं वह शिक्षण का वस्तुतः प्रोफेशन है और इसलिए समाज और राष्ट्र के प्रति शिक्षक का जो दायित्व है, प्राध्यापक का जो दायित्व है वो बहुत बड़ा है, महत्वपूर्ण है। गुरु के साथ गुरुत्व है और गुरुत्वाकर्षण है। इस पेशे के जो उच्चादर्श हैं उनको बनाए रखना आज समय की मांग भी है। प्राध्यापक का मूल्यांकन सदैव होता रहता है और वह मूल्यांकन मूल रूप से 3 स्तरों पर होता है। आपकी कितनी महत्ता है, एक प्राध्यापक की कितनी महत्ता है, इस बात का आकलन सहज ही किया जा सकता है कि आपके हर क्रियाकलाप पर समाज की नजर है, समाज की दृष्टि है। समाज आपके कार्यों की समीक्षा कर रहा है और समाज ही नहीं, विद्यार्थी जो नित्य प्रति आपके साथ उठता है, बैठता है, क्लास में चर्चा करता है, वह भी आपके कार्यों की समीक्षा कर रहा होता है। और उसके अतिरिक्त विभागाध्यक्ष के रूप में आपके कार्यों की समीक्षा विभागाध्यक्ष करते हैं, अधिष्ठाता है तो वो करते हैं, डीन है तो वो करते हैं, और उससे बड़े अधिकारी हैं, वाइस चांसलर हैं, डायरेक्टर हैं। आज तो इस कार्यक्रम में सारे बड़े अधिकारी संस्थान के जुड़े हुए हैं, वो सब आपके कार्यों की समीक्षा करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। इसलिए आपकी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। समाज जीवन में गुरु की बड़ी महत्ता है और इस कोरोना काल में जो सबसे प्रभावित वर्ग है वो शिक्षा का जो जगत है, उस दृष्टिकोण से अगर विचार करें तब भी आपकी महत्ता कम नहीं होती है। आप तो ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं, महेश हैं और इतनी महत्ता है आपकी, इतनी गरिमा है आपकी कि आप अपने आचरण से समाज जीवन में एक आदर्श स्थापित करते हैं। इसलिए आपको आचार्य कहते हैं, यानी समाज में आप अपने आचरण के माध्यम से एक आदर्श, एक दृष्टांत उपस्थापित करते हैं। कोरोना काल के कारण दिन प्रतिदिन के जो क्रियाकलाप हैं उसमें भयंकर परिवर्तन आया है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि शिक्षा का क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित हुआ है। प्रभाव तो सर्वत्र दिखता है, लेकिन सबसे अधिक बड़ी संख्या में शिक्षा जगत इससे प्रभावित है। और जब चुनौतियां खड़ी होती हैं तो उसका समाधान भी उपस्थापित हो जाता है। आज हम ई लर्निंग के माध्यम से विचार विमर्श कर रहे हैं, ऑनलाइन पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ई लर्निंग की ओर जो रुझान बढ़ा है उसमें विद्यार्थियों और प्राध्यापकों की भी दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। कई बार प्राध्यापक टेक्नोलॉजी के मामले में थोड़े से युवा पीढ़ी से कम तर होते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर एक पेंडेमिक, एक महामारी उत्पन्न हुई है तो उस समस्या का समाधान आज हो रहा है। यूनेस्को की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के अनुसार 10 में से
9 विद्यार्थियों की पढ़ाई आज बाधित हो रही है। 1% का जो आकलन किया गया है वह 87% है। आज शिक्षा जगत इतने बड़े पैमाने पर प्रभावित हुआ है। 87%, 87% स्टूडेंट जो हैं वो इस पैंडेमिक के कारण प्रभावित। और अगर शिक्षा जगत जो जिसके कारण इस समाज, इस राष्ट्र का निर्माण होना है, इस देश का पुनर्निर्माण होना है, गौरव शिखर को प्राप्त करना है, वह अगर प्रभावित होगा तो सचमुच राष्ट्र के लिए वह अहितकर होगा। एक आकलन के अनुसार विश्व में लगभग 154 करोड़ छात्र इस पेंडेमिक के कारण प्रभावित हुए हैं इस कोरोना काल में। और ये संख्या भारत में भी कम नहीं है। भारत में भी एक अनुमान के अनुसार लगभग 32 करोड़ विद्यार्थी इससे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए हैं। और वह जो प्रभाव है वह अनेक कारणों से, आर्थिक कारण भी है, सामाजिक कारण भी है, अनेक अन्य तरह की भी समस्याएं हैं, जिसके कारण कुल मिलाकर यह कि भारत और भारत ही ने पूरा विश्व आज इस कोरोना के कारण प्रभावित हुआ है। और उस प्रभाव के बीच जीवन की आपाधापी, जीवन का जो संघर्ष है, जो इस कोरोना काल ने उपस्थापित किया है, उसके बीच अगर आशा की कोई किरण दिखाई देती है, उम्मीद की कोई अगर किरण दिखाई देती है, तो वह है ई लर्निंग। ई लर्निंग की इतनी महत्ता है। अभी सीबीएसई की आप लोगों ने देखा, सीबीएसई की परीक्षाएं स्थगित हो गई। एक से एक महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन उस बीच में भी अगर शिक्षा को जीवंत बनाए रखना है तो उसके लिए ऑनलाइन क्लासेस और ई लर्निंग पर विशेष बल दिया जा रहा है। और अब तो सरकारी क्या और प्राइवेट क्या, विभिन्न जगहों पर विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से ई लर्निंग हो रहा है। और उसी में एक से एक इनोवेशन हो रहे हैं, उन्नतशील प्रयास हो रहे हैं, और अध्यापन की कला के माध्यम से विद्यार्थियों को अपनी ओर आकर्षित करने की चेष्टा हो रही है। यह प्राध्यापकों की जिम्मेदारी है, यह उनका कर्तव्य है कि विद्यार्थियों को अपनी ओर कैसे आकर्षित करें। और यही आज के लिए महत्वपूर्ण विषय है कि पेडागोजी में क्या इनोवेशन हो सकता है, क्या क्या संभावनाएं हैं, हम विद्यार्थियों को कैसे आकर्षित कर सकते हैं, विद्यार्थियों की चेतना का विस्तार कैसे हो सकता है, विद्यार्थियों के ज्ञान का विकास कैसे हो सकता है, ज्ञान का प्रचार प्रसार कैसे हो सकता है, यही आज का मुख्य विषय है। एक साल पहले तक जब लॉकडाउन लगा ही था, पिछले साल मार्च के अंतिम सप्ताह में लॉकडाउन लगा था, आप सबको याद होगा, तब ऑनलाइन शिक्षण की व्यवस्था प्रारंभ हो गई। तब प्राध्यापकों को लगा कि ये तो चलो कोई बात नहीं है, ये तो बस 2-4 महीने 6 महीने की बात है। यानी अस्थायी वो मान रहे थे, परमानेंट नहीं मान रहे थे, टेम्पोररी मान रहे थे, और काम चलाऊ व्यवस्था मानकर इसका ऑनलाइन सब कुछ हो रहा था। पीपीटी दिखाए जा रहे थे, कुछ ऑनलाइन क्लास शुरू हो गए थे, लेकिन जो अस्थायी होता है, काम चलाऊ होता है, वह तो महीने 2 महीने के लिए होता है। अगर ये 1-2 साल के लिए है तो स्थायी कदापि नहीं है। और जो परिस्थितियां, जो चुनौतियां खड़ी हो गई हैं आज, उन चुनौतियों के आलोक में यह जरूरी हो जाता है कि प्राध्यापकों
में इनोवेशन हो, उसकी जो पेडागोजी है, उसके जो अध्यापन की कला है, उसका विकास होना होगा, उसमें परिवर्तन लाना होगा, विद्यार्थियों को अपनी ओर आकर्षित करना पड़ेगा और जो प्रदत्त परिस्थितियां हैं उसका जो सर्वोत्तम उपयोग हो सकता है उसके अंतर्गत विचार करने की हम सबको आवश्यकता है। ई लर्निंग के संदर्भ में माना जा रहा था शुरू में कि चलो बीए एमए की पढ़ाई है, कोई खास बात नहीं है, वो तो वहां तक तो ठीक है, एमए भी कर लेंगे, आर्ट है, कला है, कुछ पीपीटी बना देंगे, कुछ किसी तरह से करवा लेंगे और अध्ययन अध्यापन चल जाएगा, ऑनलाइन परीक्षाएं हो जाएंगी। लेकिन स्थिति तो अभी और भी है कि इंजीनियरिंग की भी पढ़ाई, मेडिकल की भी पढ़ाई, पत्रकारिता जैसी तकनीक की भी पढ़ाई अब ई लर्निंग के माध्यम से हो रहा है और प्राध्यापकों ने एक से एक इनोवेशन के माध्यम से इसको सजीव बनाया है, इसको जीवंत बनाया है। ये जो नई तकनीक है वो गेम चेंजर साबित हो रहा है। पुराने जमाने के जो प्राध्यापक हैं, जो टेक्नोसेवी उतने नहीं हैं अपेक्षाकृत, वो भी बदली हुई टेक्नोलॉजी के दृष्टिकोण से अपने आप को उसमें ढाल रहे हैं और उसमें उम्र कहीं से भी तकनीक को आत्मसात करने में कहीं बाधा उत्पन्न नहीं कर रहा है। और प्राध्यापकों की भूमिका सदैव बनी रहेगी। ऐसा मानना बिल्कुल गलत है कि टेक्नोलॉजी आ जाने के कारण या ऑनलाइन सारी चीजें उपलब्ध हो जाने के कारण प्राध्यापकों की भूमिका समाप्त हो जाएगी, ऐसा नहीं है। सच तो यह है कि प्राध्यापकों की भूमिका पेंडेमिक के कारण से और बढ़ गई है, महत्वपूर्ण हो गई। और प्राध्यापक अब सतर्क होकर, सावधान होकर, प्रौद्योगिकी को आत्मसात करके कक्षाएं ले रहे हैं और शिक्षा का जो विकास विस्तार हो रहा है वो तेजी के साथ अब भी हो रहा है। प्रौद्योगिकी कभी प्राध्यापक अथवा प्राध्यापकीय कर्म पर हावी नहीं हो सकता है। जिस तरह से पत्रकारिता में कंटेंट का महत्व सदैव बना रहेगा, टेक्नोलॉजी कितना भी डेवलप कर जाए, उसी तरह से अध्ययन अध्यापन के संदर्भ में प्राध्यापकों की भूमिका सदैव बनी रहेगी। उनकी जो कलात्मकता है, उनकी जो अध्यापन की का कौशल है, उनके अध्यापन का जो टेक्निक है, स्किल है, उसकी सही माने में उपादेयता अब ही साबित हो रही है कोरोना काल में। कोरोना काल में समय की मर्यादा भी स्थापित हुई है। कार्यक्रम अगर पहले होना होता था तो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट विलंब से शुरू होते थे विभिन्न आयोजनों में। घंटा भर लेट से कार्यक्रम शुरू होता था। लेकिन अब इसकी खूबसूरती यह है कि समय पर कार्यक्रम शुरू हो रहा है। 2-4 मिनट कहीं किसी तकनीक के कारण कहीं कुछ विलंब हो जाए तो अलग बात है, लेकिन समय की मर्यादा का ज्ञान करवा दिया गया है और न्यू टेक्नोलॉजी की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका हो गई है। सच पूछिए तो प्राध्यापक के लिए आत्मनिरीक्षण अथवा आत्मचिंतन का भी समय इसने उपस्थापित किया है। कक्षाएं में प्राध्यापक जाते थे,
2-4 मिनट प्राइवेट में तो नहीं कह सकता, लेकिन सरकारी संस्थानों में 2-4 मिनट 5 मिनट विलंब से जाना, 5-7 मिनट अटेंडेंस में लगाना, 5-7 मिनट पहले आ जाना, कुछ गप कर लेना, अब ये ऑनलाइन में संभव नहीं है। हर चीज की मॉनिटरिंग हो रही है। यद्यपि ध्यान तो पहले भी दिया जा रहा था, अच्छे प्राध्यापकों की पहचान तब भी सुनिश्चित हो रही थी, गप देने वाले लोगों की तब भी का भी मान मर्दन हो रहा था। लेकिन अब इस टेक्नोलॉजी ने जो परिस्थितियां उत्पन्न कर दी है, उससे लगता है बहुत ज्यादा इधर उधर की बातें करना और वो अब संभव नहीं है। इसलिए प्राध्यापकों को आत्मनिरीक्षण भी करने की आवश्यकता है। अब उनका इसके कारण होमवर्क की जो कैपेसिटी है वो उसको बढ़ाने की आवश्यकता है, होमवर्क अधिक करने की आवश्यकता है। पहले भी एक अच्छे प्राध्यापक अध्ययन करके जाते थे, पूरा टू द पॉइंट बातचीत करते थे, लेकिन अब चूंकि सब देख रहा है, चूंकि वो रिकॉर्ड भी हो रहा है, इसलिए होमवर्क अधिक से अधिक करने की आवश्यकता है। पीपीटी के द्वारा प्रेजेंटेशन की संभावनाएं और चीजों को एक साथ विस्तारित करके दिखाने की भी संभावनाएं बढ़ गई हैं। ग्राफिक्स का प्रयोग अधिक से अधिक करने की आवश्यकता है, डायग्राम दिखाने की आवश्यकता है और विभिन्न इलस्ट्रेशन के माध्यम से चीजों को विश्लेषित, व्याख्यायित करने की आवश्यकता अब महसूस हो रही है। पहले जो देहांग भाषा है, जो मुखाकृति है और अन्य चीजें हैं, उसके कारण भी कम्युनिकेशन प्रॉपर वे में हो सकता था, उससे कम्युनिकेशन में तीव्रता आती थी। अब वो नहीं है। अब वह नहीं है तो उसको बढ़ाने के लिए इन साधनों का उपयोग करना जरूरी हो गया है। अब ये ऐसी टेक्निक है, ऐसी हमारे तो दोनों बच्चे बीएचयू में पढ़ते हैं, एक आईआईटी में हमारी बेटी पढ़ती है, वो भी हम जब देखते हैं तो प्राध्यापक वहां लिखते भी हैं तो वह भी सब कुछ आता है और वो सारा कुछ दिखाई देता है और वो फिगर और बाकी सारे चीज पहले से करके आते हैं और उसका प्रयोग करके अच्छी तरह से, यानी अगर कोई चुनौती खड़ी की गई है, नियति ने अगर कोई चुनौती खड़ी की है तो उसका समाधान भी है और उन समाधान की दृष्टि से प्राध्यापकों की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई। ज्ञान का प्रचार प्रसार बहुआयामी है, यह भी अब ध्यान में आ रहा है और इस तकनीक के कारण लेक्चर को बार बार फिर सुनने की भी संभावनाएं और उसकी भी वह भी संभव हो सका है। यह इसकी खासियत भी है। कोविड-19 ने चुनौतियां खड़ी की हैं तो समाधान भी स्वतः उपस्थापित हुआ है। भारत की जो शैक्षिक व्यवस्था है वो बहुत बड़ी है, इसलिए भारत की आबादी ही बहुत ज्यादा है। एक अनुमान के हिसाब से एक आकलन है, लगभग भारत में 15 लाख स्कूल हैं और 50,000 उच्च शिक्षा के संस्थान हैं और ये सब स्वाभाविक है, हर तरह के संस्थान हैं, हर तरह के लोग हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट की भी अलग अलग क्वालिटी है, यानी छात्रों की पृष्ठभूमि भी भिन्न भिन्न है। कोई ग्रामीण पृष्ठभूमि से आ रहा है, कोई शहरी पृष्ठभूमि से आ रहा है, कोई गरीब है, निर्धन है, कोई अमीर है, वो सभी कक्षा में बैठकर पढ़ते थे और वहां इस बात का बहुत अधिक आकलन नहीं होता था पहले कि कौन किस पृष्ठभूमि से आ रहा है। लेकिन अब
उसकी पृष्ठभूमि के कारण अनेक चीजें उपस्थापित हो रही, जैसे इंटरनेट की समस्या है, डिजिटल गैर बराबरी का विषय है, किसी के पास पर्याप्त संसाधन है, डिजिटल संसाधन है, किसी के पास कम है। इन विद्यार्थियों का जो पृष्ठभूमि है वो भाषा के स्तर पर भी उसमें वैविध्य दिखता है। इसलिए छात्रों को ई लर्निंग के मंच उपलब्ध कराते समय मंचों का विकल्प भी विद्यार्थियों को दिए जाने की आवश्यकता है। विभिन्न प्रकार के मंच दिए जाएं विद्यार्थियों को, वह जिसके माध्यम से चाहें, जिस तरह से चाहें उसका उपयोग कर लें। इसलिए चुनौतियां तो प्राध्यापकों के समक्ष बढ़ी ही है। विद्यार्थियों के पास उपकरणों की भी जो उपलब्धता है वो भी एक जैसी नहीं है। सबके पास स्मार्टफोन नहीं है या सबके पास लैपटॉप नहीं है। वैसी उन परिस्थितियों के आलोक में भी विचार करने की आवश्यकता है। ऑनलाइन के जो मंच हैं वह भी अनेक हैं, भिन्न भिन्न हैं। कहीं गूगल का है, गूगल मीट है, कहीं वेबएक्स है, कहीं जूम है। आज जिस पर हम बातचीत कर रहे हैं वह भी एक अलग प्लेटफॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट का। तो इन विभिन्न माध्यमों के द्वारा अधिक से अधिक हम विद्यार्थियों को उपलब्ध करा सकें और वो चाहे जिस भी स्थिति का उपयोग करके संपन्न हो सकें, अपनी शिक्षा की व्यवस्था को पूरी कर सकें, यह समय की मांग है। बॉडी लैंग्वेज पहले विद्यार्थी समझते थे, लेकिन अब अगर बॉडी लैंग्वेज उस तरह का उपस्थापित नहीं हो पा रहा है, हमारी लाचारी है, तो हमारी आवाज का जो उतार है, चढ़ाव है, उसमें जो कंपन है, हमारी आवाज में जो के माध्यम से जो कुछ भी हम कर सकते हैं, ग्राफिक्स के माध्यम से जो कुछ भी हम कर सकते हैं, हम डायग्राम दिखाकर जो कुछ भी कर सकते हैं, वो सब करने की आवश्यकता आज महसूस हो रही है। विद्यार्थियों के अंदर सीखने की जो जिज्ञासा है उसको उत्पन्न करने की आवश्यकता है। छात्रों का जो अटेंशन है उसको अपनी ओर आकर्षित करने की आवश्यकता है। आभासी दुनिया में भी, आभासी वातावरण में भी सजीव और जीवंत कैसे बना जा सके, कैसे पठन पाठन सजीव हो सके, संचार कैसे बेहतर से बेहतर हो सके, इस बात की भी आवश्यकता आज महसूस हो रही है। इन शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, नमस्कार। Thank you, sir, for enlightening our audience with the latest pedagogies which can be used during the COVID time. Now, I would like to invite Professor Dr. Anil Kumar Nigam, sir, Dean BGMC, to give vote of thanks. Am I audible, ma'am? Yes, sir. जी। फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के मुख्य अतिथि, ख्यातनाम पत्रकार, शिक्षाविद, साहित्यकार एवं प्रशासक भी, अब तो प्रशासक का भी जुड़ गया है कि आप एक अच्छे कुशल प्रशासक भी हैं, और मेरे परम मित्र प्रोफेसर अरुण कुमार भगत जी, IMT ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के डायरेक्टर जनरल MK सोनी जी, IMT कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर अभिन्न बख्शी भटनागर जी, मेरे कलीग्स डीन प्रोफेसर अंशुल शर्मा जी, डॉक्टर विभा सिंह जी, सबसे पहले तो मैं अपने मित्र अरुण कुमार भगत जी का आभार व्यक्त करता हूं, स्वागत करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। अपने डीजी साहब का भी मैं इस अवसर पर स्वागत और
आभार व्यक्त करता हूं। मित्रों, एज प्रोफेसर अरुण कुमार भगत has explained the importance of the teacher and the teaching pedagogy, which plays very important role even in the society and the nation. उन्होंने बताया कि किस तरीके से पूरे समाज और राष्ट्र के लिए एक जो टीचर है उसकी जो भूमिका है, उस भूमिका के बारे में हमें बताया। साथ ही जैसा कि हम सब जानते भी हैं और हमारे वक्ताओं ने भी इस बात को बहुत स्पष्ट तरीके से बताया कि किस तरीके से इस कोविड-19 ने हमारे सबसे ज्यादा शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित किया। एंड ड्यू टू दैट वी हैव टू रीइन्वेंट द न्यू टीचिंग पेडागॉजीज। हमें इनोवेशन करने के लिए हम उसके लिए बाध्य हो गए और यही कारण है कि हम नए नए तरीके खोजने लगे। निसंदेह जो पहले फेस टू फेस टीचिंग थी, जिसमें अरुण जी ने चर्चा की दैट द बॉडी लैंग्वेज वाज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो बॉडी लैंग्वेज के आधार पे हम अपने स्टूडेंट को एनालाइज कर सकते थे, हम स्टूडेंट को पहचान सकते थे। जो अच्छे टीचर हैं उन्हें मालूम है कि यदि स्टूडेंट क्लास में वो प्रेजेंट है कि एब्सेंट है। दो फिजिकली ही और शी इज प्रेजेंट, लेकिन मेंटली शी और ही इज एब्सेंट। तो अच्छा टीचर तुरंत पहचान लेता था, ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी थी। ये बहुत बड़ा चैलेंज है आज की तारीख पे कि हाउ यू कैन एनालाइज वेदर द स्टूडेंट इज ओनली ऑनलाइन, खाली ऑनलाइन बना हुआ है, या वास्तव में आपको सुन रहा है, कुछ सीख भी रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन इस आपदा ने, इस कोविड-19 ने हमें इनोवेशन करने के लिए बाध्य किया है। और जैसा कि डीजी साहब बता रहे थे और अरुण जी बता रहे थे, किस तरीके से हमें कोलैबोरेटिव लर्निंग पे ध्यान देना होगा, किस तरीके से हमें ग्राफिक्स के जो है नए नए एंट्री पॉइंट्स हमें इंक्लूड करने पड़ेंगे अपनी टीचिंग पेडागॉजी में, किस तरीके से हमको उसमें इनोवेशन करके नए तरीकों से अपनी बात को कम्युनिकेट करना होगा। वो उन चीजों पे हमें आज चर्चा करनी है, विचार करनी है। हमारे वक्ताओं ने बहुत अच्छे तरीके से कई चीजों के बारे में बताया। दे टोल्ड एंड दे एनलाइटेंड अस। तो सबसे पहले मैं अरुण जी आपका जो है आभार व्यक्त करूंगा। आई एम सो ग्रेटफुल ऑन बिहाफ ऑफ IMT College of Management that you imparted your knowledge and experience among the faculty members, researchers, and the what should I say, our dignitaries यहाँ पर जो लोग उपस्थित हैं। तो सबसे पहले आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला और यहाँ आए और आपने समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा अपने डायरेक्टर जनरल डॉक्टर MK सोनी सर का, जिन्होंने समय निकाला और बहुत अच्छे तरीके से कई चीजों पे प्रकाश डाला, किस तरीके से हम इसमें इनोवेटिव अपनी टीचिंग और लर्निंग जो है पेडागोजी को बना सकते हैं। आई वुड लाइक टू थैंक आवर डिप्टी डायरेक्टर सर डॉक्टर अभिन्न भटनागर सर। आई वुड लाइक टू आल्सो थैंक माय बोथ कलीग जीज Dr. Anshul Sharma, Dr. Vibha Singh, and I would like to thank to organize such a wonderful कार्यक्रम our convener and R&D cell head Dr. Ram Shankar ji, convener of IC cell Mr. Dr. Vineet Kumar, and Dr. Swati Singh ji for what should I say, moderating and coordinating this program. And the whole team, the technical team, and the faculty members who are participating from all over the country, even what should I say, the faculty members, researchers, and what should I say, the scholars are participating in these faculty development programs. They are from the 27 states and union territories. और जैसा कि बताया हमारे डिप्टी डायरेक्टर सर ने कि बहरीन और दुबई से भी हमारे जो है पार्टिसिपेंट्स हैं इसमें, उन सब लोगों को बहुत बहुत आभार। आई एम थैंकफुल टू देम, एंड आई थिंक दिस 1 week faculty development program
का जब हम निचोड़ निकालेंगे, जब कंक्लूजन निकालेंगे, तो हमें पता चलेगा कि वी विल लर्न valuable things in this faculty development program. With this, I would like to thank once more all my guests. Thank you so much. Over to you, Swati ma'am. Thank you so much, sir. There's an important announcement for all the participants that tomorrow there will be no FTP session. We all will meet on 4th of June at 3 p.m. So thank you all the participants. We'll meet on 4th of June. Thank you so much. Would you like to tell about the link we have shared? The same link will work, or there will be any change? Sir, we'll inform it to the students through the Gmail and the WhatsApp group. We'll share it again. All are connected with WhatsApp group, so I think we will share the link there if there will be any change. Okay. Yes, sir, definitely. Okay. So, with the permission of DG sir and Director sir, we should now conclude this session. Yes. Okay, sir. Over. तो सभी लोगों को नमस्कार. Thank you. Thank you.